I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. We are trying to focus on building up the OOPS concept. Learning language is quite simple. Keep in mind, learning language is a very simple thing. So always I shall feel to take examples which is directly uh, related to real world. Okay, so now this is a sample of mark sheet which you can see on the screen. We all know in mark sheet on top sections there will be student information, and in the bottom sections in tabular form there will be different subject entries. Okay, we can see I have assumed only few fields to make the whole concept more easily we can grasp, we can understand. So we can see subject name, we can see full marks, we can see passing marks, we can see the obtained marks, and these are the entries of one student, remember. So it's a very simple real world applications kind of thing. You can sit and always think of real world problem. Okay, now I am moving on to the next slide. In that slide, I shall try to filter out all those informations, group them, think in terms of object, which about which hints already I had given into the previous day session. Okay. Should I move to the next slide? Okay. Look at this. The same symbol of marks we can see. Okay. The bigger box, the whole thing. हम लोग बोलते हैं ना कि ए friend, where is your mark sheet? What do you observe? Holding a piece of paper in a particular person's hand. तो that is क्या है? वो एक वस्तु है, and that is what is called object. तो सबसे पहला object, the first object which is a mark sheet. Okay, now you can see, you can go inside the mark sheet. You will see there is a information of a student, roll number, maybe name, maybe mobile number, many other fields. So that is one object, that is one group of informations, and to that I call it as a student object. तो क्या हो गया? Mark sheet object contains one student object. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंटेनर का काम करता है. रिमेंबर, इंफॉर्मेशन कंटेन्स. व्हेन वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट, तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट कोई एक ऐसी वस्तु होती है ना टू विच वी कैन टच, वी कैन फील. नाउ इन टर्म्स ऑफ, हाँ बोलिए. So we can only see the first slide. We cannot see the rest of the slides that you are showing. This slide is visible. So only the first one, the Spring Boot one. हाँ. What is that? चेंज नहीं हो चेंज नहीं हो रहा है. नो सर, चेंज नहीं हो रहा है सर. अच्छा, मैं तो फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा. क्या क्या इश्यूज आ रहा है? एक सेकेंड. Now can you see this slide? नो सर. So we can see your video. तो है स्लाइड को क्यों वन स्लाइड, एक सेकेंड. ओके, आपने अच्छा किया कि बोल दिया. ऐसा इश्यूज आ रहा है. My network is fast, everything is okay here. अच्छा, let me share it again.
ये आपका कौन सा स्लाइड दिख रहा है? Spring Boot. Spring Boot. बस? अरे Yes, sir. तो हम लोग परेशान हो जाएंगे. अच्छा, प्लीज स्पेयर मी सम टाइम. अब तो कोई स्लाइड नहीं दिख रही है. No, sir. ओके. No, sir. हाँ, मैंने वो अनशेयर किया है, फिर से मैं देखता हूँ एक बार. सर अब दिख रही है. Yes, sir. Now we can see. अच्छा, थैंक गॉड. मार्कशीट का सैंपल दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके. तो रियल वर्ल्ड देखो माय फ्रेंड, आप हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटी को लेके सोचो. एक रियल एप्लीकेशन, उससे हमको सोचने का भी मौका मिलेगा और उसको हम बहुत इजीली सीख सकते हैं. लैंग्वेज में बहुत छोटी चीज होती है. आई टेल यू, हार्डली 10 पीस ऑफ पेपर के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो जावा को होता है वो वी कैन जस्ट समराइज देम, नॉट मोर देन 10 शीट्स. लेकिन जब सैंपल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं ना, तो वहां से हम रियल वर्ल्ड को एप्लीकेशंस को लेके कंसीडर करते हैं एंड वी लर्न देम. ओके, तो मार्कशीट आपको दिख रही है अब नाउ. Yes, sir. इस मार्कशीट में हम लोग तो देखते ही हैं, मिनिमम हमने इंफॉर्मेशन आई हैव एज्यूम्ड कि you have students informations and then every mark sheet contains what is that called, subjects detail. तो हमने उसमें लिया है subject name, full marks, passing marks, obtained marks and so on. अब इसमें percentage marks भी होगा, total भी होगा, वो सब हम अभी ज्यादा नहीं लिए हैं. So we should not get messed up into that thing. Now second slide, can you see the second slide? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हम देख रहे हैं ना कि हमने, आप देख रहे हो कि सबसे पहला जो फर्स्ट है दैट इज माय मार्कशीट. हम लोग बोलते हैं ना, जरा सोचो, मैं अगेन सेम सेंटेंसेस को आई एम रिपीटिंग कि आई एम होल्डिंग ए मार्कशीट. हमारी जब रिजल्ट निकलती है, हम ऑफिस से मार्कशीट कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम अपने हैंड में, हाथ में एक पीस ऑफ पेपर होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं. दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट फर्स्ट, है ना. तो इसलिए मैंने आउटर बॉक्स को एक ऑब्जेक्ट कहा है एंड दैट इज मार्कशीट ऑब्जेक्ट. एंड नाउ जब मार्कशीट को खोल के देखते हो तो क्या दिखेगा? ऑफ कोर्स ऑन टॉप देयर विल बी इंस्टीट्यूशंस नेम, यूनिवर्सिटीज नेम एंड सो ऑन. मैंने उनको अभी नहीं लिया है, डोंट मेस अप. एक बार जब चीजों को समझ जाएंगे तो फिर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं. तो मार्कशीट में मेनली क्या होगा, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशंस. तो योर मार्कशीट कंटेन्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने एक रेड बॉक्स में, सर बॉक्स के अंदर रखा है. आई हैव पुट इनसाइड अ रेड बॉक्स दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. अब नाउ नेक्स्ट, मार्कशीट के अंदर तो दो ही मेन चीज होती है, सब्जेक्ट के उसमें एंट्रीज हैं, दैट्स इट. सेकंड इन्फॉर्मेशन. It contains several subjects type के objects, several objects of subjects. मतलब कई एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की जो एंट्री होगी that will be one object. इसलिए यहां पे मैंने लिखा है set of subject object. सब्जेक्ट्स लिखना चाहिए था, set of subjects. तो इस स्लाइड से आपको कॉन्सेप्ट्स क्या क्लियरली विजिबल हुआ, समझ में आई? और एनी डाउट? ये हमारा और आपका क्विक कम्युनिकेशन जरूरी है. समटाइम्स अदरवाइज आई मे नॉट नो दैट इज इट दिस इज विजिबल और नॉट. यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है टिल दिस स्लाइड? रेस्पॉन्ड मी क्विक. Yes, sir.
तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? एक मार्कशीट ऑब्जेक्ट हो गया. That object will contain one student object and set of subject object. Is that clear? Now move. अब हमें इन तीनों ऑब्जेक्ट का जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए? वन मार्कशीट ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, थर्ड वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. So 3 classes with these following attributes we are going to create. Prince, are you present today? Prince, are you present? Okay, so I am moving to next slide. Now next, हमने previous slide में already in previous slide we had seen that after having the clean discussions of that particular problem, we concluded that there are three classes we are supposed to design. तो अब तीनों क्लास को मैंने यहाँ पे separately यहाँ पे डिजाइन किया है, उस डिजाइन को लिखा है. तो we have first class student. So when you think of objects, once you come to know about the object, you are supposed to create this particular diagram which you can see this is on the screen. और इस diagram को हम क्या बोलते हैं? Do you know? Class diagram. And class diagram contains 3 sections. In top sections we write down the name of the class. In second section we have list of the attributes. Of course हमने इसमें बहुत data types वगैरह use नहीं किया है. Just I have listed the what is that called? Attribute sets. Next, because I as already I said, I don't want to make you more confused. Let us keep those concepts simple. So in next day when we will write down the complete, we will follow the complete object-oriented notations to represent a class diagram. So this class diagram has 3 sections. The first thing is on top we have the name of the class. Then in the second sections we have the set of attributes, roll number, student's name, and their mobile number. Maybe some more attributes there. Maybe I have just to make this simple. Then in third sections we are having the set of methods. कौन से functions हमें बनाना है? Get data and show data. These are the 2 methods. What I have considered. Get data का काम होगा to accept information through keyboard for the students object, and show data नाम भी ऐसा ही है कि हम उसको डिस्प्ले करेंगे उसको यूज करके. So this is the first class diagram of a student class. Should I move on to the next? Is it clear? ये स्लाइड दिख रही है ना? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. चलो, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. फिर मैं ये सारे स्लाइड्स को आप बाद में भी देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा. ओके? Yes, sir. नेक्स्ट. Yes, sir. अब नेक्स्ट देखिए, आपका कौन सा था? सब्जेक्ट था. तो इस डायग्राम का क्या नाम हुआ? What is the name of this? Class diagram. नहीं, class subject हो गया. The diagram what we are creating is known as class diagram. तो जब आप प्रॉब्लम को कोडिंग करने से पहले आप एग्जाम में भी आंसर्स लिखेंगे, the best answer is you always read out the questions carefully, understand the concept, write down the list of the objects, create class diagram for each of the objects, and then follow the Java code. तो अब देख लो सब्जेक्ट में क्या क्या था. सब्जेक्ट का नाम था, it was having full marks, passing marks, obtained marks, and as earlier 2 methods, one to accept the data, that is get data, another one show data. फिर इसकी कोडिंग भी आएगी आगे. आज रिमेंबर हम लोग इसमें और कोडिंग में हो सकता है बहुत सारी चीजों को, मिनिमम चीजों को मैंने I had thought what I can put, that we will see shortly.
तो ये सब्जेक्ट है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि जब आप प्रीवियस स्लाइड से अटैच करके इसको देखेंगे, व्हेन यू compare this class diagram with the previous slide which already I had shown you, तो उसमें already हमने दिखा दिया था कि subject was having that 4 informations, 4 entries, ठीक है? तो मेन तो यही दो था, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट. नाउ द थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा बच गया? फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, एंड फाइनली लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मार्कशीट. अब आपने देखा था ना कि मार्कशीट कंटेन्स व्हाट? एवरी मार्कशीट कंटेन्स व्हाट? One Every student. marks. बोलिए. Yeah, speak. Every mark sheet contains a student objects information, and the second is list of subjects. Is that clear? Again, as like earlier, there will be 2 set of methods. Get data. गेट डेटा का काम क्या होगा? एक्सेप्टिंग डेटा फॉर मार्कशीट. एंड सो डेटा का काम क्या होगा? डिस्प्लेइंग डेटा फॉर द मार्कशीट. डिस्प्लेइंग डेटा, दैट इज डिस्प्लेइंग मार्कशीट ऑब्जेक्ट. तो दैट्स इट. दिस इज द डिजाइन ऑफ UPS design of generating a mark sheet. Till here any problem? तो आप हमें बताएं. इसके बाद मैं फिर जावा कोड की तरफ स्विच करूंगा. इस डिजाइन को हम इंप्लीमेंट करेंगे, and already it is already I have coded, so it will not take much time. And after explanations, slide as well as that Java code, both will be shared, uploaded on. You can download and you can see and refer. यहां तक कोई any type of confusions, folks? Any friends? Any kind of queries you can have? If you have, you can raise. Or should I move on to the Java code? Move, sir. हम लोग अब जावा लैंग्वेज की तरफ चलें, इस डिजाइन का इम्प्लीमेंटेशन. Yes, sir. Good. Yes, sir. गुड. भाई जब सारे लोगों की रिस्पॉन्स आएगी, देन ओनली आई शैल बी मोटिवेटेड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में है, आप भी अलग हो, हम भी अलग है, सामने तो हो नहीं. चलिए. गुड. अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स क्लास डायग्राम जो हमने दिखाया था, आप उस तीनों क्लास डायग्राम को, है ना, रिकॉल करिए. नाउ आई एम शोइंग यू द जावा कोड, देयर इम्प्लीमेंटेशन. Now can you see this screen? Yes, sir. Now look, this is the Java code of the same design. जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा, देखिए ऊपर में आपको इंपोर्ट दिख रहा होगा. नाउ माय सजेशन इज, कुछ छोटी छोटी चीजें जो नई नई चीजें आपको दिखेंगी, मे बी रिलेटेड टू लाइब्रेरीज और वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज, you please note down on piece of paper, so that आप जब उस टर्म को जानेंगे
then only you can get help also. And आपको मैं आगे के classes में भी बताऊंगा, there are some software, some source also which you should install on your system. Now first line you can see in this piece of code is we are importing java.util.scanner. ये फर्स्ट स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट किया है. डू यू नो अबाउट स्कैनर क्लासेस? स्कैनर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, sir. सेकंड आप Yes, देख रहे हैं, सेकंड आप क्लास देख रहे हैं फॉर्मेटर क्लास. Yes, sir. No, sir. ओके. No, sir. Why I have used formatter class? Telling you, I am just telling you. आप एक चीज बताइए कि सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम बनाए हो तो प्रिंटफ फंक्शंस याद होगा ना. प्रिंटफ फंक्शन में जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं परसेंटेज परसेंटेज डी वगैरह लिखते हैं और उसमें स्पेस सेट करते हैं. डू यू नो दैट? डू यू रिकॉल? कैन यू रिकॉल देम? Yes, sir. Yes, sir. मान लो ऐसा कभी सी में लाइन लिखे थे जैसे परसेंटेज और डी के बीच में सपोज हमने लिख दिया present 5D. एनीवन? Yes, sir. उसका पर्पस क्या था? वो वैल्यू गेट कर लेता था उसकी. नहीं नहीं नहीं. Its purpose was to format. See, when you display on a screen, we fix the amount of space what I want to reserve for outputting my data. मान लो मेरी कोई नंबर है 5 डिजिट की, ओके, एंड मैं टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करता हूं. तो कोई नंबर मान लो 5 डिजिट है, कोई 3 डिजिट है, कोई 2 डिजिट है, तब तो जिगजैग फॉर्म में दिखेगा ना. सो मैं उसके लिए स्पेस फिक्स कर दूंगा कि वॉट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स, नो इशू, मैं उसको फिक्स कर दूंगा कि इट विल कंज्यूम, इट विल रिजर्व फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस, दैट इज 10 स्पेस, 20 स्पेस एंड सो ऑन. तो उससे क्या होगा कि मेरा आउटपुट जब सेवरल लाइंस आउटपुट होगा तो एक सीध लाइन में दिखेगी. तो उसी टाइप के फॉर्मेटिंग को करने के लिए we have formatter class, और ये formatter class जो है जावा पैकेज के अंदर सब पैकेज है util, एंड उसके अंदर ये होता है formatter class. ओके, तो formatter class मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं, used to format output. Okay, is it clear? Now, अब देखिए next class you can see I have created just a class whose name is my object. इस क्लास में मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल कीबोर्ड इनपुट करने के लिए I have created an object of scanner type, जो आप जानते भी होंगे. Scanner object I have created. ठीक है ना? और स्कैनर ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है उस इंस्टेंस वेरिएबल्स का नाम हमने इनपुट दिया है. इनपुट इज द इंस्टेंस वेरिएबल दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर टाइप, और इसके पहले मैंने स्टैटिक लगाया है. Now, do you know about this static? हमने यहाँ पे static लगाया है. Why? Now note down. There is a concept. आप class सीख लिए हो, but you haven't learned static members. ये static members हो गया. Why do we create a static member? The very simple thing is, कॉमन मेमोरी शेयर करने के लिए. मेमोरी शेयर ज्यादा अच्छा. मैं एक बताऊं, आपने C+ में काम किया होगा तो उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है सीन एंड सी आउट. डू यू रिमेम्बर?
तो Yes, sir. ऐसा जावा में प्रीडिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं एक सिंपल एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं जिसका मैंने नाम दिया इनपुट, और वो स्टैटिक उसके पहले लग गया है। तो जब स्टैटिक किसी भी एट्रीब्यूट के पहले लगेगा, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टैटिक मेंबर, और इट्स बेटर टू से स्टैटिक एट्रीब्यूट। और यहां पे ये हमारा एट्रीब्यूट कोई सिंपल इंट फ्लोट इम्प्लिसिट टाइप तो है नहीं, सो इट इज बेटर आई कॉल इट एज स्टैटिक ऑब्जेक्ट। Remember, you write system.out.println. Will you explain me this line? System.out.println. Can you anyone explain? See, system is a class, inbuilt class, and that is defined inside java.lang package. Note down. System is defined inside system class is in java.lang, and java.lang is the default package. Look at this, the beauty. It's a default package. That means automatically entire classes of java.lang will be available for your Java program. You need not import them. If it wouldn't have been the default package, then and on top, in the same manner, the way we have imported two classes, a scanner and formatter, we would have also imported system, a string, a system and a string. In this program, we have two classes which is of java.lang, and java.lang is the default package. इसलिए हमें उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। Now, जब हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब सिस्टम ऑब्जेक्ट से मैं आपको टैली करके दिखा रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट, लुक, स्टैटिक मेंबर्स, टू क्रिएट स्टैटिक मेंबर्स वी हैव सिंटेक्स जस्ट टू प्लेस a static word before this. And why we create? The memory creations for static member is independent of objects. No matter how many objects are created of my object class, a static member's memory is not dependent on object. Whether you create object of my object class or not, automatically as soon as class is loaded into the memory, all the static members memory will be allocated, and of course there will be only one copy of memories that is for static object. तो जब हम system.out.print लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इसका explanation कि out is static object inside system class in the same manner जैसे मैंने my object में लिखा है। इसका मैंने यूज किया है for inputting a static object used for inputting. तो नीचे में जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है ना, for input operations कि ओके, तो नीचे जितने भी गेट डेटा में हम कीवर्ड इनपुट कर रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ इनपुट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने इनपुट के लिए लिखा है ना, my object dot input dot next line. Next line is the member functions of a scanner class, and input object जो instance variable हो गया, it contains object of scanner class. तो जब भी कीवर्ड इनपुट करना होगा
आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो वन ऑब्जेक्ट आई हैव क्रिएटेड, एडवांटेज क्या हो गया, अब हर जगह हमको ये बारी बारी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज देम। तो देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे यू यस रिकॉल द क्लास डायग्राम ऑफ ए स्टूडेंट क्लास। यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट है, सॉरी, here we have constructor. Do you know what is constructor? Constructor is a special functions whose name and the class name should be same, has to be same, not should be, it has to be the same. Am I audible? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंस्ट्रक्टर समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. एक ही आवाज आ रही है, ये डिफॉल्ट Yes, sir. तो यस सर, ओके गुड। तो Yes, हमने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर and argument constructor, parameterized constructor. It is good that always you should create constructor. Do not think whether you are going to use them or not. तो fast जरा चले। Now you have get data. Get data का क्या पर्पस है? डेटाओं को इनपुट करना, कीबोर्ड से इनपुट करना। एंड लुक दिस लाइन जहां पे मैंने एक स्पेस क्रिएट किया, इस लाइन को देखिए, this line. I am writing down comments. Wrapper class. मैंने कल कहा था कि you should know the wrapper classes. Wrapper class कुछ नहीं है. Look at this. जितने भी implicit data type हैं Java में, int, float, byte, long, boolean, etc. sort, है ना? For every implicit data to be represented as explicit, we have set of classes, and those set of classes are known as wrapper class. In Java exam also, on maybe sometimes it is asked into the examinations, write short notes on wrapper class, wrapper classes. So there are not just one, and इसकी नेम जो है ना वो मिलती जुलती है। int data type we have implicit and explicit. implicit क्या हो गया, जितने भी डेटा टाइप्स जावा लैंग्वेज के हैं, int, float, char, etc. एंड सबके लिए एक एक क्लास बना हुआ है। रिमेंबर ये क्लास कहाँ है? java.lang के अंदर, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो, इंटीजर को भी हमने कहीं भी इंपोर्ट नहीं किया है। तो अब इंटीजर डॉट पार्सेंट यहां पे लिखा हुआ है। लुक, आमतौर पे क्या होता है, वी राइट ऑब्जेक्ट डॉट, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट हियर इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, इंटीजर इज द क्लास नेम एंड क्लास नेम फॉलोड बाय डॉट। ये कब आती है? डू यू रिमेंबर? डू यू नो? It comes only when after dot the function comes is static member functions. तो दो कॉन्सेप्ट हो गए स्टैटिक मेंबर का, एक स्टैटिक डेटा मेंबर, सेकेंडली स्टैटिक मेथड। तो यहां पे आपका रैपर क्लास क्या हो गया? इंटीजर इज ए रैपर क्लास। इंटीजर इज a wrapper class. I have written comment वहां पे so that easily you can understand. जब आप इस कोड्स को देखेंगे, after class I shall upload it, upload all this file. And print क्या हो गया? Anyone respond? Static method. नहीं भी जानते हैं, चिंता मत करें, आने वाले एग्जाम्पल्स में आएंगे।
अगर C प्लस पहले से पढ़ा हुआ then these concepts are same, just syntactical difference थोड़ी बहुत होगी. तो parseInt is a static method. और static method को कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है? My dear friends, class name followed by method. जब कहीं भी क्लास नेम फॉलोड बाय मेथड आएगा, क्लास नेम डॉट, तो क्लास नेम के बाद जहां डॉट आ गया बस समझ जाओ आने वाला क्या है, या तो स्टैटिक मेथड है नहीं तो स्टैटिक एट्रीब्यूट है. एंड एक चीज जरा ध्यान दोगे, जावा प्रोग्राम को सीखने में जावा लैंग्वेज जो है इट फॉलोज सर्टेन कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस के कारण से हमारा टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारा हो जाता है. पार्सेंट के स्पेलिंग पे ध्यान दो, पार्स एंड इंट, दीज आर द टू इंग्लिश वर्ड्स. इसको कंबाइन जब हम करते हैं तो एक फंक्शंस का नाम क्रिएट हुआ पार्स इंट. एंड जावा कन्वेंशंस में क्या है कि एवरी वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड if it is a class name, but if it is a function name then first character is a small, rest all words first letter is capitalized. तो अपना हम भी जो कोडिंग करेंगे we should follow the same concept, same Java convention. इसका एडवांटेज ये होगा कि there will be lesser typing mistakes. Look, that is why हमने मेथड गेट डेटा का क्या नाम दिया है, देखो तो गेट जी स्मॉल है एंड डी कैपिटल है. ऐसा नहीं कि हम कंपलसरी के ऐसा ही लिखे, ये तो हमारा फंक्शन है, हम कुछ भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं. लेकिन अगर एक ही लैंग्वेज में इफ यू पीपल विल हैव टू सेट ऑफ कन्वेंशंस, ऑलवेज इस कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण से यू विल गो ऑन क्रिएटिंग मेनी एरर्स एंड एरर डिबगिंग में ही आपकी टाइम चली जाएगी. सो प्लीज फॉलो माय वर्ड्स, follow the conventions, you write down the names by following the same conventions. दो ही तो नेम होते हैं, क्लास नेम, मेथड नेम या एट्रीब्यूट नेम, दैट इज वेरिएबल नेम. तो क्लास का नाम का हर इंग्लिश के वर्ड से जो मिलते जुलते इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे, हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा. लेकिन अदर देन क्लास जो दूसरे मेथड होंगे या एट्रीब्यूट होगा, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बट एक्सेप्ट फर्स्ट हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. तो ये हमारा हो गया गेट डेटा. रैपर क्लास का यूज किया, यहाँ पे क्या हो गया, सो लुक एट दिस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. नाउ यहाँ पे जो गेट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन इज द मेंबर फंक्शंस ऑफ स्कैनर क्लास. ये नॉर्मल फंक्शंस है, ये स्टैटिक नहीं है, इसलिए इस फंक्शंस के कॉलिंग सिंटेक्स को देखो, हाउ आई हैव रिटन. So it returns as a string, and parseInt method of integer wrapper class converts that string into integer. अब स्कैनर क्लास के अंदर डायरेक्ट इंट डेटा टाइप को भी लेने की फंक्शंस हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग देम. उसके दो रीजंस हैं. एक रीजन, आई वांटेड टू टीच यू अबाउट रैपर क्लास a bit, that is applications. Secondly, when you are accepting keyboard input mixed data type conversions, जैसे for example one data may be int, another one float, another one string and so on, तो यहाँ पे buffering problem internally होता है. Internally buffers are not cleared automatically, so sometimes some of the inputs will not be taken very cleanly. So in order to avoid that, the better approach is accept everything as a string, then by using proper wrapper classes convert them. That is what I have done. So guys, are you clear about the use of wrapper classes? The use of wrapper classes to convert explicit to implicit or implicit to explicit, vice versa. मतलब इम्प्लिसिट डेटा को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना हो या वन टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो, वी गो फॉर रैपर क्लास, है ना. तो नॉर्मली फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड एनीवेयर डेटा कम्स और वी सेंड द डेटा,
that is always in terms of a string. So get the string, data as a string, do the conversion as per your the required data type of the particular language. ठीक है, तो इन जावा यहाँ पे हम उसको रोल को मैंने इंट लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया. अगर मान लो रोल को भी आपने स्ट्रिंग लिया होता तो नो नीड ऑफ कन्वर्सन. तो guys, are you clear about the use of wrapper classes? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन कौन रैपर क्लासेस है? इंट के लिए इंटीजर है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, कैर के लिए कैरेक्टर है, एंड सो ऑन. तो easily you can just get those knowledge from Google or maybe your textbooks. तो इस तरह से स्टूडेंट के लिए क्लियर ये हो गया. फिर आई एम गोइंग टू शो द डेटा. आउटपुट करने जा रहे हैं system.out.println, और यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसा, it is not, this syntax is slightly different from C. Here we are using plus sign in between of two set of data, but one must be of a string. So plus in Java language is also used for concatenations of two string. Remember, तो ये जो लाइन जहां पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे ये बोथ डेटा जो है स्ट्रिंग तो नहीं है. रोल इज स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, बट आफ्टर प्लस द रोल इज इंट. So here int is concatenated with a string, but already just I said कि plus is used to concatenate to a string. Then how does it work? Internally, automatically, all the data types data, if it is not a string, and if that non-string data is concatenated with a string, automatically they gets converted into a string before concatenations, and they get joined. So you need not convert them. If it wouldn't have been automatic conversion, then you will get syntax error at this moment, which is not needed. Java, it is clean, we can do it. Okay. So I have tried my best to explain each and every concepts what I have used into this code. Remember, you have to also grasp all this thing and come up. Next classes it will be a bit faster, because first day I am having interactions with you all guys, and depending on your feedback, the next sessions things will be faster and more concepts will be included. So in now this code you can see now, here we have subjects. क्लास डायग्राम आपने देखा था, यहाँ पे हमने अब सब्जेक्ट को क्रिएट किया है. अब नाउ आई थिंक देखो, इनपुट के लिए जो हमने वहां पे बनाया था माई ऑब्जेक्ट क्लास, और उसके अंदर इनपुट आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स था, इसलिए यहाँ पे सिंटेक्स क्या हो गया, इन सेम मैनर जस्ट लाइक जैसे वी आर राइटिंग सिस्टम डॉट आउट, उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिस्टम माई ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन. गाइस द हाइलाइटेड लाइंस, कैन यू सी? अब उस लाइन में कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन? इसको क्लियर कर लो तो एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा. यू विल नो why I created a static data member and also a separate object. सेपरेट क्लास के अंदर मैंने उसको क्यों रखा, उसको मैं हर जगह यूज कर सकता हूं. माई ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन में कोई कंफ्यूजन है? एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड. अब बताओ तो ये ऐसा, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? Just explain this line. How can I write this? My object class हो गया, and उसके अंदर input क्या हो गया, static object. In the same manner, system जो हमारा library class है, system library class के अंदर out जो है, वो out भी एक object है.
द वे यहाँ पे इनपुट जो है स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से आउट है प्रिंट एलएस प्रिंट, ठीक है। सो नाउ सब्जेक्ट, अब ये मार्कशीट को जरा ध्यान से देखो एंड लुक द डिजाइन। मार्कशीट ऑब्जेक्ट कैसा था? हाउ वाज द मार्कशीट ऑब्जेक्ट? डू यू रिमेंबर? हेलो, मार्कशीट ऑब्जेक्ट को रिकॉल करिए। इट वाज कंटेनिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट टाइप एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या था? What was the second object? जो डिजाइन हमने स्लाइड दिखाया था, the second object was list of subjects। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हम बनाएंगे, तो हमने यूजिंग एरे उन सारे चीजों को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट डे हम जब एप्लीकेशंस लेंगे, तो एरे की जगह पे हम क्या लेंगे? वेक्टर, जो ऑलरेडी हम लोग कल उस टर्म को प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, रिसाइजेबल एरे। मतलब क्या हो गया कि we don't have to worry about the size at runtime, we can go on adding elements as per our requirement। तो ये जावा में एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। Array that stores, array is used to store all the objects of subject type। अब यहाँ पे एरे क्रिएशंस का जो सिंटेक्स है, इफ यू नो फाइन, नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एरे ऑपरेटर को आप पहले भी लिख सकते हो या सी स्टाइल में वेरिएबल के बाद भी लिख सकते हो। एनी वन विल डू, आइदर द ब्रैकेट विल बी ऑन द आफ्टर द एरे नेम और बिफोर नेम, बोथ वर्क्स, बोथ सिंटेक्स आर acceptable in Java language। Okay, now look, now I have created a default constructor marksheet and argument constructor marksheet। अब ये कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे जो एक आर्गुमेंट दिया है, वो ये बताने के लिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आई एम गोइंग टू हैव इनसाइड द मार्कशीट, एंड अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी क्रिएटेड डायनेमिकली। और उसी के लिए मैंने एक इनिट फंक्शंस क्रिएट किया है। लुक एट दिस, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इनिट फंक्शंस क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड देयर आफ्टर इट क्रिएट्स एरे डायनेमिकली। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एरे? Arrays are always created at runtime। Array always created at runtime, always created at runtime, that is dynamic। runtime creations को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। इसलिए तो unlike C, in C language we have both the concepts। Normally when we learn C language, we always create a static creations of memory we use for array, and later on we do the dynamic also। but Java में ऐसी बात नहीं है, always dynamic। इसलिए तो Java को फीचर, Java के फीचर्स में हम बोलते हैं, Java का एक बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट फीचर है कि Java is dynamic। ठीक है ना? तो हमने ये फंक्शंस क्रिएट किया है। डिफॉल्ट में जब हम नहीं बताए हैं, तो ये मान लिए कि हमने इस इनिट फंक्शंस को 1 भेज दिया। मतलब क्या, मैं ये फिक्स कर लिया हूं कि एटलीस्ट मार्कशीट में एक तो सब्जेक्ट होगा ही ना, 1 एंट्री।
But if you wanted to have more entries, I have argument constructor. For only one entry, we can directly call default also. And दोनों कंस्ट्रक्टर जो भी हो, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएशंस के लिए आपको init मेथड को कॉल कर रहा है. And look at this very interesting point. I have given private access to this init method. Can anyone explain me why I have done so? Please friends, come up. आप आगे आए. Will anyone explain why I have done so? ये प्राइवेट एक्सेस यहाँ पे क्यों यूज किया गया? Any idea? So you can Because only so because you can only create number of subjects when you have at least one student. Otherwise तो कोई और एक्सेस कर सकता है इनिट मेथड को सर बाहर से मार्कशीट ऑब्जेक्ट के थ्रू. लेकिन आप उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं. राइट. तो इसलिए मैंने क्या कहा ना, ये क्लियरली किसको सोचना है? डिजाइनर को सोचना है. एंड डिजाइनर कौन है? आप हैं, जो आप सीख रहे हैं. तो आपको सोचना है कि हमें बाहर से एक्सेस अलाउ करना है. यू हैव पब्लिक. अगर एक्सेस को रोकना है, यू हैव प्राइवेट. ब्लाइंडली चीजों को हमें प्राइवेट ये नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स यहाँ मैं भूल गया, वहां पे भी करना चाहिए था. हमको यहाँ पे एक्सेस रोकना है, तो यहाँ भी हम क्या कर लिखेंगे? प्राइवेट. ओके, हमने यहाँ भी लिख दिया प्राइवेट. इस जो हम डिजाइन जो स्लाइड दिखाए थे और इसकी जो कोडिंग दिख रही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. मार्कशीट कंटेन्स स्टूडेंट एज वेल एज सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. अब देखो, सेट ऑफ सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले क्या हो गया? इस लाइन में हमने एरे को डायनेमिकली क्रिएट किया. ये लाइन एरे को डायनेमिक क्रिएट कर रहा है ना. एंड उसके बाद जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने मेमोरी क्रिएट हो रहा है. और यहाँ पे इंडेक्सिंग टेक्निक जो आप जानते हो ऑलरेडी, लाइक प्रीवियस लैंग्वेज C और C++, इन द सेम मैनर इट इज बीइंग यूज्ड. इनिट फंक्शंस को समझने में किसी एनीवन हैव प्रॉब्लम? Does anyone have problem? Are you comfortable, guys? Yes sir, absolutely. इनिट के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट, एनीवन, कोई भी, फील फ्री टू आस्क. If you still have doubts after so much of discussion, then I will feel myself ashamed. I shall try some other way also to explain. So, okay. Now, look. Once this design is clear, implementation is clear, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फॉर्मेटर को क्यों यूज किया था. Look this line. Formatter. Try to see. यहाँ पे देखो show data. तो show data ये सबसे पहले क्या किया? स्टूडेंट के शो को कॉल कर लिया. देख रहे हो ना? तो ये स्टूडेंट डॉट शो डेटा क्या करेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो मार्कशीट के अंदर है उसके इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. लेकिन हमारा मेन इश्यूज क्या था? वो स्पेस इश्यूज था. कहाँ पे? टेबलर फॉर्म में सीधा सीधा दिखे, इसलिए हम फॉर्मेट करेंगे. देखो ये लाइन तुम्हारे लिए नया नहीं ना होना चाहिए. परसेंटेज 20s. S stands for string. फॉर्मेटिंग के लिए जो हम लोग C में यूज करते थे printf के अंदर, तो ये 20 जो हो गया ना, वो स्पेस रिजर्व करेगा, है ना. और इसके लिए हमें फॉर्मेटर का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. एंड फॉर्मेट उस फॉर्मेटर क्लास का मेथड है. उसके अंदर एग्जैक्टली printf का सिंटेक्स देख लो. मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे. लुक एट दिस. ये printf का सेम सिंटेक्स है जो C में हम लोग यूज करते थे. और उसके बाद
फर्स्ट में हम सब्जेक्ट नेम दिखाना चाहते हैं, फिर फुल मार्क्स मेरा सेकेंड डेटा है, पासिंग मार्क्स मेरा थर्ड डेटा है, एंड ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैंने छोड़ दिया, लुक एट दिस। तो लेट्स सी, वहां पे भी हो सकता है छूट जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मेट इंफॉर्मेशन है, लिख ही देता हूं, परसेंटेज 20/80, थोड़ी सी कम कर देते हैं, परसेंटेज एस, क्योंकि 15 ले लेते हैं, चाहे रहने दो, लेट्स सी, जब हमारा स्पेस कम ज्यादा होगा तो एडजस्ट करेंगे। तो फॉर्मेट फंक्शंस को समझ गए, उसके बाद प्रिंटलन में हम लोग एफएम लिखते हैं। एंड लुक, व्हाट इज एफएम? एफएम बेसिकली ऑब्जेक्ट, एफएम तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया which contains object. So now println function is going to display object. How does it work? Any idea? Or you need explanation? Look, I am explaining you. I am sure you must not be knowing like this. ये println में हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा, हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। When you write down directly object inside println functions, what happens? Do you know? Internally, automatically it calls to a string method. Look, whether I write this or not, it automatically does. So I am writing inside comment. मैं यहाँ पे ओनली एफएम लिखता हूं, लुक, और मैंने कमेंट में लिख दिया है इक्विवेलेंट टू एफएम डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब ऑटोमेटिकली एफएम जब हम यहाँ लिखेंगे, ऑटोमेटिकली प्रिंटफ विल कॉल टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ फॉर्मेटर क्लास। ये टू स्ट्रिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशंस अबाउट टू स्ट्रिंग मेथड्स। तो inside println functions you can write either directly fm or fm dot to a string. Fm gets converted to fm dot to a string automatically. तो क्यों हम लंबा लिखें, हम डायरेक्ट लिख देते उतना ही, मेरा काम हो गया। अब ये लाइन आपके लिए न्यू होगा पूरी तरह से। Do you know this for each loop of Java language? Look, from Java 5 onwards, before Java 5, I think it wasn't there. It was not there, this feature. For loop in more simplified manner was added in Java 5 onwards. ये for each नाम से लूप नहीं होता है, and remember this was added to traverse a container, array or container. मतलब if you want to fetch all the concepts, all the objects, all the item, all the data of an array or container, indexing technique already you know. Look at this here, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, indexing technique तो already जानते हैं हम. A new thing is you can use this kind of for loop syntax, for, and this for is known as for each loop. It's a new. This loop is not present in C or C++. In other languages, it is present. तो यहाँ पे इसका name for each नहीं होता है. But explanation is this works for each of the element of array or container.
इसका सिंटेक्स स्पेशल है, आप कुछ भी यहां नहीं लिख सकते हो, जस्ट ए वेरिएबल और जिस टाइप का आइटम आपका एरे या एरे कंटेन, यहाँ पे एरे ही है, एरे या वेक्टर कोई भी एरे और एनी अदर कंटेनर है ना, वो डाटा टाइप यहां ही लिखना है। ऐसा नहीं कि एस नाम के वेरिएबल को कहीं और डिक्लेयर कर लो और यहाँ पे ओनली एस लिख दो, इट विल बी एरर। एंड आफ्टर दिस कॉलन, सो एस इज एसोसिएटेड विद द कंटेनर नेम। तो यहाँ पे हमारा एरे है, एरे का नाम क्या है, ऊपर आप देख सकते हो डिजाइन में, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ऑटोमेटिकली दिस लूप एस विल हैव द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एरे एंड उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए वहां पे हम नीचे लिख रहे हैं एस डॉट स्टोर डेटा। फिर ये लूप रिपीट करेगी, इट विल फेच द 0th एलिमेंट पहला था। इंडेक्सिंग में एरे याद रखोगा ना कि फर्स्ट आइटम की इंडेक्स 0 होती है, सेकेंड आइटम का इंडेक्स 1 होता है एंड सो ऑन। सो व्हेन द लूप रिपीट्स, automatically it will fetch the next object, that is next indexed object or data what it have. So right now it is having object, so that is why I'm calling it as objects. The loop repeats continuously and in turn you display all the data. तो हम indexing भी कर सकते थे, but I wanted to teach you the for each loop of Java language, and remember it can be used only to fetch the element and not randomly. Every element is starting from 0th index till last. And one thing यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे length को मैंने लिखा है, तो internally array जो है it acts as an object. जावा में एरे जब हम बनाते हैं तो इंटरनली एक ऑब्जेक्ट बनता है और उसके एट्रीब्यूट कंटेन करता है उसके लेंथ को। इसलिए देख रहे हो ये जितना हमारा सब्जेक्ट था उतना टाइम से लूप हमारा रिपीट कर रहा है। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड लेस देन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डॉट लेंथ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और लेंथ उसका पब्लिक एट्रीब्यूट है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावा लैंग्वेज। वंस यू क्रिएट एरे एंड यू फॉरगेट व्हाट वाज द साइज, Java automatically remembers by using length attribute of that array object. इसलिए मैंने वहां पे लिखा है I less than array का जो नाम था dot length। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उस array के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। We are not just fetching, मतलब वहां से हम निकाल नहीं रहे हैं, वहां पे हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम for each loop यूज नहीं कर सकते हैं। For each loop is used, can be used for only reading purpose. We can read the data which has been kept inside container. निकालने के लिए याद रखो, डालने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं। यही हमारा for each loop है जो मैंने यहाँ पे लिखा। सिंटेक्स सिंपल है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं सिंटेक्स कमेंट भी पुट कर दी है। Is it clear? Now I am writing the main methods. Look, इसके लिए मैंने सेपरेट क्लास किया है day 2 डेमो। आज हम लोग का सेकेंड डे है, इसलिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है day 2 डेमो, और यहाँ पे हमने मेन मेथड को रखा है। Look, you have marksheet इंस्टेंस वेरिएबल, और जिसको कि हम इंस्टेंशिएट किए हैं, एक लाइन में भी इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। नो नीड ऑफ 2 लाइंस, आई do for in only 1 line. तो इस तरह से marksheet object is created. Marksheet objects. Marksheet object is created, है ना? और m.get data मार्कशीट ऑब्जेक्ट के लिए डेटाओं को कीवर्ड से हम इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे डेटाओं को डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट्स इट, दिस इज आवर जावा कोड। इज दिस क्लियर गाइस? वी विल एग्जीक्यूट, वी विल रन, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, देन वी विल क्लोज दिस टुडे सेशन। अब यहाँ पे क्लियर है तो शुड आई एग्जीक्यूट इट, और इफ एनी डाउट यू मे आस्क।
सर कोई भी ऐसा पॉइंट है तो आप अभी पूछिए, बोलिए। यस। सर आपने एक जगह इनपुट डॉट रीसेट यूज किया था। इनपुट डॉट रीसेट। उसकी नीड नहीं है, वो हम हटा देंगे। रीसेट का काम क्या है कि इट रीसेट्स द स्कैनर ऑब्जेक्ट, है ना, एंड इट विल रीसेट, जैसे जस्ट लाइक रीसेटिंग हुआ ना, कि जैसे मान लो रियल लाइफ में इफ आई हैव पुट एनीथिंग इनटू द पॉट, देन आई एम गोइंग टू रीसेट द पॉट, का मतलब अगेन यू मेक द पॉट एम्प्टी एंड क्रिएट लाइक अर्लियर। तो रीसेट वाज केप्ट फॉर कीपिंग समथिंग इन माइंड, लेकिन वो रीसेट की कोई यूज यहाँ पे नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव वेरी क्लियरली वॉच्ड। इसकी कोई नीड नहीं है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं। आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट इज योर नेम? सर अक्षिता। अक्षिता, बहुत केयरफुली तुमने देखा, दैट वाज वेरी गुड। तो रीसेट का ये पर्पस होता है, ये रीसेट का कोई यहाँ पे अभी यूज हमें नहीं दिख रहा है। तो पर्पस वही है कि वंस द स्कैनर ऑब्जेक्ट जो है ना, it has been right now connected with system.in, so that is why system.in क्या है, it's just like if you remember the concept of C, in C there are two predefined streams, std in and std out, if you remember. So std in is a buffer which contains all the data inputted through keyboard. जब कीबोर्ड से जो आप डेटा इनपुट करते हो ना, that goes from keyboard buffer to the std-in named buffer of C language. Similarly, in Java also contains in object inside system class. तो in जो object हो गया वो आपका static object है system के अंदर, इसलिए वहां पे हम लोग को scanner object को system.in के साथ attach करना पड़ता है. Look, if I change system.in buffer to some other buffer, then a scanner will read from that source. जो later on हम लोग आगे के प्रॉब्लम में देख सकते हैं. So it is kind of open source course to whichever you connect, it will fetch the data from that. इस टाइप का काम होता है. तो रीसेटिंग का यहाँ पे यही काम था. Any more question? Any more question? Should I execute? देखो हमने जो एडिटर यूज किया है वो जे क्रिएटेड एडिटर है फॉर लर्निंग, फॉर बिगिनर्स, फॉर स्टूडेंट्स. इट इज वेरी लाइट एडिटर, वेरी सिंपल एडिटर. इसका सोर्स कोड भी बहुत छोटे हैं और ये ओल्ड वर्जन है. नए वर्जन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी है. तो फॉर बिगिनर्स आई फील टू यूज दिस एडिटर, बट ओनली आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज आवर एम इज टू क्विकली complete these issues, completely learn the basics of Java, and then we are supposed to go to Spring Boot. And Spring Boot के लिए we should have good knowledge as well as basic understanding of Eclipse editor, Eclipse IDE, and that is what we shall use in future, but not now. अगर हम आज यूज करेंगे तो पता चलेगा हम जावा लैंग्वेज को छोड़ के उस आईडी को ही सीख रहे हैं. There are many very rich ID, and in future we need to learn that. Remember, you can do a Spring Boot using ID like Eclipse as well as NetBeans and so on. But most of the professionals they use Eclipse ID. That is what we will do in future, but not now. This editor is very simple. If you would say, I can share the exe also of this compressed format. You can download. Very easy to compile, edit, and so on. Just like as we do in C programming, like using Turbo C and other compilers. Very simple, very easy. Easy to install, easy to use. Now I am executing. Press escape. It will go to this mode. Now, is this screen visible? अब ये स्क्रीन कैसा दिख रहा है? एडिटर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
हेलो, लुक यहाँ पे, look, ये जो कोड है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सारे यहाँ पे ये कंपाइल करने के लिए कोड है, बटन है यहाँ पे, ये कंपाइल है और ये देखो रन है। देखो यहाँ पे हम कंपाइल प्रेस कर रहे हैं, ये बटन्स दिख रहा है, मेरी माउस पॉइंटर दिख रही है ना बटन के पास। यस सर। चलिए इसको हम प्रेस करते हैं, लुक कंपाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, और देखो यहाँ पे मैसेज आएगा। अब मैं जरा एक एरर क्रिएट करता हूं और ऑटोमेटिकली ये सेव करता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किया, ओके, एंड आई नीड नॉट प्रेस द सेव बटन, हम जस्ट कंपाइल बटन वी शैल प्रेस, इट विल सेव फर्स्ट एंड देन कंपाइल एंड इट विल डिस्प्ले सर्टेन एरर मैसेज। अब बताइए तो क्या एरर मैसेज आपको दिख रहा है, so that I will know that you are, of course, this screen is visible. इस लाइन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक ही तो एरर ही है, लास्ट में क्या दिख रहा है, एनीवन बताइए कोई भी, ये कौन सा एरर दिख रहा है, what error you can see, the error message? ये स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? भाई तुम लोग रिस्पॉन्सिव आज नहीं हो। हेलो, इंटरेस्ट शो करना होगा, चीजें इतनी सिंपल है, प्रैक्टिकली आप नहीं करेंगे कभी भी इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, यू कैनॉट लर्न एनी मोर। ये स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही, दैट इज व्हाट आई डाउट। यस सर, विजिबल है। एरर दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तुम लोग जावा करने के लिए कौन से आईडी यूज कर रहे हो? एक्लिप्स सर। तो आर यू फेमिलियर विथ एक्लिप्स? यस सर, समवॉट। क्योंकि एक्लिप्स मैंने इसलिए टच नहीं किया, जब मैं स्प्रिंग एक मिनट जरा ध्यान देना, जब मैं स्प्रिंग बूट या थोड़ा हायर लेवल पे जाऊंगा तब हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग बूट। अभी इनिशियल लेवल ऑफ जावा प्रोग्राम को करने में सॉरी नॉट स्प्रिंग बूट, व्हाट इज दैट, आई मिस्टेकन, एक्लिप्स आईडी, अभी उसके हमें कोई बेनिफिट नहीं समझ में आते, बट इफ यू आर familiar and if you are using them, then fine, then no need. But if you want, it is very simple, very easy to use. तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, लेकिन 2-3 क्लास 4 क्लास के बाद जब हम उसमें जाएंगे, जब हमें वैसे चीजों को देखना होगा, जब एडवांस जावा के पोर्शन में जाएंगे तो हम निश्चित तौर पे उसी आईडी को एक्सप्लेन करना होगा, यूज करना होगा। एनीवे, तो लेट मी रिमूव दिस, और ये बहुत इजी इंस्टॉल भी होता है एंड बहुत लाइट वेट है। अब देखो ये कंपाइल होके सक्सेसफुल मैसेज आ गया। कैन यू सी दिस मैसेज प्रोसेस कंप्लीटेड? अच्छा देखो हम इसको अब रन करते हैं, बहुत सिंपल आइडिया है। वो एक्लिप्स को इनिशियल पता नहीं, माई सेल्फ एज ए टीचर, और ये भी मैं तुमको बता दूं, इन गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस we were not allowed to even use any editor. Now also, when I find many, even I am talking about IIT, छोड़ दो अब छोटे colleges को, I am talking about IITs, those teachers, they don't allow to use any of the IDs. Why? Do you know? There are many internal concepts we do not exactly understand what internally happens. हर internal steps को हम नहीं समझ पाते हैं, so directly we were forced to do on the command line. तो myself as a teacher, if I teach to any students, मैं few classes को student को command line पे ही करवाता हूँ, and then once if that student is familiar, then I slowly switch on to JCreator ID. अब जब हम इसमें एक बार, because I am
more and more concerned concerned in developing the Java language, not learning the other stuffs, and put ourselves more confused. अब देखो, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कितना इजीली कंपाइल हो गया, और ये बटन एग्जीक्यूट करता है, देखो एग्जीक्यूट फाइल मैसेज डिस्प्ले हुआ होगा, बस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए. लुक, दिस आउटपुट स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? No, ये sir. ये ब्लैक स्क्रीन को फिर शेयर करना होगा, तो स्क्रीन बदल जाती है ना. चलो हम एक बार शेयर करते हैं. हम एक बार शेयर करते हैं आउटपुट स्क्रीन. 1 सेकेंड, थोड़ी सी आप हमें टाइम स्पेयर करें. अब विजिबल है? Yes, sir. ओके, अब देख रहे हो ना, ये जो अब इनपुट हुआ, तो सबसे पहले वो गेट डेटा ऑफ दैट मार्कशीट ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट का गेट डेटा था, दैट वाज फेच्ड, और उसके अंदर दो इनपुट है. इंटर द रोल नंबर, मान लो रोल नंबर 111 है ना. इंटर द नेम, मान लो किसका मैं नाम डालूं? अच्छा, हम जस्ट स्टूडेंट लिख देते हैं, कुछ भी, या ग्राफिक एरा स्टूडेंट, ग्राफिक ए, चलो ग्राफिक एरा ही रहने दो स्टूडेंट का नाम. ओके, मान लो मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है ना. सब्जेक्ट नेम मान लो सपोज मैथ, मान लो फुल मार्क्स 100, passing marks maybe how much I am deciding, 30, marks obtained मान लो 89. सब्जेक्ट्स, अब ये फिर सेकेंड सब्जेक्ट के लिए आ गया, क्योंकि इफ यू सी द मेन फंक्शंस, देन आई हैव कॉल्ड for two objects. That means I have specified that marks is object is going to contain two subjects. So that is why second subject entries it is asking. So I am writing COMPUTER, computer. मान लो full marks 100, मान लो कंप्यूटर में मैंने पासिंग मार्क्स 50 कर दिया, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड सपोज आपने 90 नंबर स्कोर किया. अगर मान लो 3 होता तो फिर तीसरे सब्जेक्ट के एंट्री पूछे जाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं आएंगे. लुक, दिस इज व्हाट इज द आउटपुट व्हिच वी आर सेइंग. अब मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं दिख रहा है, हमें ये लग रहा है कि वो मार्क्स ऑब्टेन्ड को डिस्प्ले करने का वहां पे छूटा हुआ है, इसलिए वो चीजें नहीं दिख रही हैं. हम लोग अभी तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, या आप करेक्ट कर लेंगे. लुक, अब जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ रही है, एंड ये देख रहे हो फॉर्मेटर के फायदे, एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटर. कैन यू सी? स्पेसिंग दिख रही है ना, सीधी सीधी, राइट जस्टिफाइड. ये Yes, sir. स्पेस जो फिक्स हो गया, देख रहे हो स्टूडेंट नेम के पहले जो उतना स्पेस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 20 स्पेस रिजर्व किया था. तो फर्स्ट मैथ्स 100 30, ऑब्टेन मार्क्स खाली दिख रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम में मिस्टेक है, प्रिंटिंग के समय वो छूटा हुआ है. Should I correct it? Hardly it will take 1 minute. Yes, sir. मैं करेक्ट करके फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ. 1 spare just a minute. वही है, एक जगह वो छूटा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में वो फॉर्मेटिंग में छूट गई है, इसलिए वो नहीं आ रही है. मैंने फॉर्मेटिंग को करेक्ट कर दिया और फिर से रिकम्पाइल करता हूं. Java program takes like more time in order to compile. Now let me share a screen again.
Now can you see the output screen? चलो हम लोग name Ram Kumar I have given this time. Mobile number 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Subject's name मान लो SPRING Spring Boot. The full marks 100. Maybe passing marks suppose 50 minimum. My standard is bit high. 50% तो एटलीस्ट जानना ही चाहिए ना. सेकेंड सब्जेक्ट टाइम मान लो जीके, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, फुल मार्क्स मे बी 50, पासिंग मार्क्स ओके ठीक है 30 विल डू, नो हाई 20 and marks of अभी कोई error checking वगैरह नहीं. Look at this now. maybe इसमें आया suppose 35. Now can you see the output? चारों entries आ रहे हैं ना? All the 4 entries हैं? Yes, yes. उस समय मिसिंग था, उस समय लास्ट एंट्री मिसिंग था बिकॉज फॉर्मेट में वो परसेंटेज डबल कोट्स के अंदर जैसे प्रिंटफ में हम लोग लिखते थे, दैट फॉर्मेट इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग. अब देख रहे हो सारे राइट जस्टिफाइड हैं. अगर लेफ्ट जस्टिफाइड करना होगा तो क्या करेंगे? डू यू रिमेंबर फ्रॉम सी लैंग्वेज? कोई भी बताओ, अगर याद है तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं बोलता हूं ना, इतना टाइम लेने की नहीं जरूरत है. अगर लेफ्ट जस्टिफाइड करना होगा देन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? एनी आइडिया? माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम? लेफ्ट जस्टिफाइड करने के लिए कोई आइडिया जान रहे हो? No, sir. हमने परसेंटेज और एस के बीच में क्या लिखा? 20 लिखा था ना. वहां पे आप -20 लिखेंगे, माइनस साइन देंगे, देन इट विल बिकम लेफ्ट जस्टिफाइड. आप ट्राई करके देखेंगे, मैं कोड अपलोड कर देता हूं. एंड अगर कोई साइन नहीं होगा देन इट इज राइट जस्टिफाइड. रिमेंबर सी लैंग्वेज में भी हम लोग ये करते थे. इसका मतलब आप लोगों ने ये फॉर्मेट सेक्शंस को स्किप कर दिया था. मैं आपको बताऊं, you people seriously take all this work. आप कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करें. जितने दिन हमारी और आपकी इंटरेक्शंस होगी, आई एम चैलेंजिंग यू दैट you will have a huge interest in these subjects. आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो. थियोरी तो बस हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, then I can recall them, I can learn them and so on. अब चीजें क्लियर है? Any doubts, any questions जो आप पूछना चाहते होगे? Shall we stop this session? How was today's topic? How you felt? It was good. So I will share both the slide also which is containing the design and then Java code also. Will it be okay? Yes, sir. Okay, sir. आप उसको डाउनलोड करेंगे and I hope you will read each and every aspects of the program. आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, रैपर क्लास इसमें आ गया. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ. प्रोग्राम में अभी हमने यहाँ पे कोई एरर चेक्स नहीं किया है. लुक एट दिस, फुल मार्क्स कितना है? 100. क्या कोई स्टूडेंट 100 से ज्यादा नंबर ला सकता है? आंसर है नो. तो हमें इन चीजों को भी प्रोग्राम में देखने की जरूरत है, तभी तो प्रोफेशनली करेक्ट होगा. डेटा एंट्री कौन करेगा? जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो कोई क्लर्किकल स्टाफ जो होगा, दे विल डू द डेटा एंट्री ऑपरेशंस. So don't you think that error should be checked at the time of entry? क्या एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एरर चेक?
होना चाहिए सर. Yes. होना चाहिए. तो हम लोग जितने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाएंगे, प्रोग्राम के साइज बढ़ेंगे कि छोटे हो जाएंगे? बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. इसलिए मैंने उन चीजों को नहीं लिया है. बट एज वी गो ऑन, हमें प्रोफेशनली चीजों को बारीकी से सोचना चाहिए, तभी तो वो सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ होगा, करेक्ट होगा, रोबस्ट होगा, एंड ऑल दोस करेक्टनेस होनी चाहिए, ऑल द काइंड ऑफ क्वालिटी होगी, आउटपुट जो भी दिखना है वो सारी चीजें दिखनी चाहिए, एक नीट होना चाहिए, नीटनेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. ओके, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों को हमें देखना है. वी विल सी in next class what examples I am going to take so that more and more concepts जल्दी से जल्दी. अभी हम आज क्या हो गया, उप्स के इसमें सारे बेसिक फीचर्स, क्लास यूज हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज हो गया, स्टैटिक मेंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, रैपर क्लास आ गया, कुछ बहुत सारी चीजें जो हमें बतानी थी वो आ गई. नेक्स्ट डे जल्दी से जल्दी हमें इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट करना है. सो होपफुली टुमारो वी शैल मीट बिफोर हॉलीडेज. टुमारो एक ऐसा हम एग्जांपल लेंगे by using which I can teach you till polymorphism, और उसके बाद हम exceptions handling करेंगे. हमारी ये कोशिश होगी कि I don't know how many days of vacations we people are going to get for this holy festival. So my idea is some 5 to 6 class के अंदर हम चीजों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. और इसका मतलब ये नहीं है सोचना है कि ये खत्म हो गया. आगे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो ये सारे पीस ऑफ कोड जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स जो देख रहे हैं, इन्हीं चीजों को तो रिपीट करना है. तो जब आप स्टडी करेंगे, एनी सिंपल से सिंपल, आप मे बी सिंपल फॉर अदर्स, लेकिन अगर किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो क्वेश्चनर्स आप हमको सेंड करेंगे ऑन टाइम व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, सो दैट मैं आपको उस डाउट को एक्सप्लेन करने में बोल पाऊं. इज इट ओके? सो शैल वी आर विद दिस रिजल्ट्स, विद दिस वर्ड्स, आई एम गोइंग टू एंड टुडेस सेशंस. ओके, गुड नाइट गाइस. Thank you, sir. And hope you all will work hard. Are you assuring me? Sir. Yes, sir. Yes. Do more and more programs. मैं कोशिश करूंगा और भी ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेना, और आगे चल के डिजाइन को और कॉम्प्लेक्स करेंगे. मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि और रियल प्रॉब्लम इसमें डालेंगे. जैसे आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया ना कि इसमें एरर चेकिंग तो नहीं है, तो इन चीजों के लिए हम लोग आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाएंगे और बहुत सारे फीचर्स आएंगे. ओके देन, गुड नाइट.